dear students, welcome back in my class. So today I am going to start with a new topic, that is transport and communication in India. Okay. So in this topic, by the end of this topic, you will be able to understand the meaning of transport, how transport can be used, and what are its importance, and the means of communications. What are the means of communication, and how communication is important for all of us. So these are the main, some of the objectives which you will know after learning this chapter. So the number one, I am going to start with transportation. So what do you understand by transport? The means of transport. When you move, or when we move from one place to another with the help of a vehicle, is called means of transportation. So this was the definition. When, or you can say vehicle, that we use to move from one place to another place is called means of transportation. So we have different means of transportation. Number one is your land transportation. Number second is your air transportation, or you can say air transport. And number three is your water transport. Or you can say transportation. Okay, so these are the three main important transport which we use during when we move from one place to another place. So what is land transport? Land transport क्या होता है? जब हम बस या फिर किसी चीज का सहारा लेते हैं, जैसे कि हम बस में जा रहे हैं, राइट, या बाइसिकल में जा रहे हैं, या बुलेट कार्स यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हमारे लैंड ट्रांसपोर्टेशन है. अब इसमें भी हमारे two types of transportation we have in this. Number one is your road transportation. Road transport. अब road transport में कौन से आएंगे? जो कि हम यूज करते हैं, कार, बस, right, and extra you have truck, scooter. So all these things will come under your road transport. Then we have rail transport. रेल ट्रांसपोर्ट में हमारे आ जाते हैं बेटा आपके ट्रेन आते हैं, मेट्रोज. सो ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है ये आपके इसमें आ जाएंगे रेल ट्रांसपोर्ट में. ठीक है. तो लैंड ट्रांसपोर्ट सिंपली क्या है? व्हीकल दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस on land is called your land transport. Land transport is of two types. This is also divided into two parts, that is road transport and rail transport. Road transport में आप यूज कर सकते हो कार, स्कूटर, बस, राइट, motorcycle. And in rail transport you can use train, metros. So these are the two main part of land transport. Then comes to your air transport. Now एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? When we move from one place to another with the help of you can say air, not air but air transportation or air transport. Okay, that is known as air. or you can say जब हम एरोप्लेन की हेल्प लेते हैं, ओके, तो वो एयर ट्रांसपोर्ट में आता है. Now air transport is the fastest means of transportation. फास्टेस्ट मतलब अगर हमें किसी जगह में जाना है तो वो कम समय पे हमें जल्दी छोड़ेगी एज कंपेयर टू योर दीज टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, बट इट इज ऑल्सो आप बोल सकते हो कि सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट. तो एयर ट्रांसपोर्ट तो ये हो गया फास्टेस्ट है बट इट इज एक्सपेंसिव देन
these two transport. And air transport, what it basically it drop the people in less time, कम समय में जल्दी छोड़ देता. ओके, दिस इज योर एयर ट्रांसपोर्ट. नाउ देन इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर एंड मेनी मोर. ओके, नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है? अभी हमने पढ़ा लैंड एयर, तो ये तो बाय लैंड है, राइट? ये बाय एयर है, तो अब ये कौन सा होगा? बाय वाटर. ट्रांसपोर्ट और यू कैन से व्हीकल दैट मूव ऑन वाटर and take the people or goods from one place to another place. Okay, now जो water transport है बेटा, ये सबसे पुराना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. oldest transportation system. oldest क्यों है? क्योंकि सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता था एज कम्पेयर टू योर लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट. सबसे लेट आया है आपका एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट में ये बाद में हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन्स बनना स्टार्ट हुए थे ना, तो इसीलिए लेट है. और सबसे पुराना जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट. अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, राइट? कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? शिप, देन वी हैव सबमरीन, राफ्ट्स. ये जितने भी चीज़ें हैं ये हम वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ये हमें लेके जाते हैं. ठीक है, जहाज, बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, राइट? सो दीज आर द थ्री डिफरेंट you can say modes of transportation. I hope you will understand. Read it. It's not difficult. सिर्फ आपको मेन चीज़ें याद रखनी है. लैंड ट्रांसपोर्टेशन वो ट्रांसपोर्ट होता है विच आर बाय लैंड. एयर ट्रांसपोर्ट जो एयर के थ्रू होता है. देन वी हैव वाटर ट्रांसपोर्ट बाय वाटर. एंड एग्जांपल्स यू कैन गिव: कार, ट्रेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर. देन वी हैव शिप, submarine. So these are the different modes of transportation. Now we are going to learn about the communication. Is your communication. Communication तो आप लोगों को पता होगा, है ना? क्या होता है communication? When we communicate with each other, जब हम एक दूसरे से बात करते हो, ठीक है? कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी. कम्युनिकेशन है क्या? व्हेन वी सेंड आवर मैसेज, वो किसी भी टाइप से हो सकता है, चाहे वो वर्बल भी हो सकता है एंड नॉन वर्बल. वर्बल मतलब जैसे कि मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ एंड आप लोगों को मैं चैप्टर समझा रही हूँ. सो दिस इज द टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन कि यस आई एम टॉकिंग टू यू, okay, and I am communicating it with you. But non-verbal communication is when I am I'm not saying anything but my actions are saying more than my words. यानी कि जो मैं मुंह से नहीं बोल पा रही हूँ बट मैं एक्शन करके बोल रही हूँ. ओके, सपोज दैट बच्चे क्लास में बैठे हैं और मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आईज बड़ी कर रही हूँ. दैट मीन्स स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड कि मैम बोलना चाहती है कि चुप हो जाओ. ठीक है, सो दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हेन वी कम्युनिकेट विद ईच अदर. व्हेन वी कम्युनिकेट विद ईच अदर by verbal form or by non-verbal form. आपकी जो बुक में है वो दूसरी डेफिनेशन दी होगी, ये थोड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको इजीली लर्न भी हो जाएगी. व्हेन वी कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय वर्बल फॉर्म और बाय नॉन-वर्बल फॉर्म, ये दो वर्ड्स जो है वर्बल फॉर्म और नॉन वर्बल फॉर्म, ये मैंने अभी आपको
समझा दी। ठीक है, अब हम इसके मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। अब इसके भी हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। पहला है आपका पोस्टल सिस्टम, सेकेंड है आपके मॉडर्न और यू कैन से यस मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर थर्ड है, वैसे तो जो नंबर थर्ड है वो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ही आ जाएगा, बट हम इसको थोड़ी अलग रखेंगे, दैट इज योर मास कम्युनिकेशन। अब बहुत ही सिंपल है, तीनों जो फॉर्म्स है बहुत सिंपल है, यू डोंट हैव टू गेट कि इतने ज़्यादा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है। पोस्टल सिस्टम में क्या होता है, वी सेंड लेटर्स टू ईच अदर। ठीक है, इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लेटर्स का। जैसे कि आप लोगों के घर में आपके मम्मी पापा बहुत सारे लोग हैं, उनके लेटर्स आते होंगे ना, तो वो कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगा आपका, पोस्टल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हेन वी यूज लेटर और व्हेन वी सेंड लेटर्स, या फिर दूसरा आपका कुछ एक और आता है स्पीड पोस्ट होता है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आपके पोस्टल सिस्टम में आएगा। और दूसरा आप लिख सकते हो स्पीड पोस्ट। और ये लेटर्स एंड स्पीड पोस्ट हमें कौन देता है, पोस्टमैन। ओके, so that is why it will come under your postal system communication. Then comes under your modern means of communication. In modern means of communication we have different modes, यानी कि हमारे पास अलग अलग तरह के सिस्टम है। मॉडर्न मतलब जो आजकल वी ऑल यूजेस, जैसे कि मैं अभी आपको समझा रही हूँ, ये किसके थ्रू समझा रही हूँ, थ्रू वीडियो, राइट, थ्रू इंटरनेट। ये हम इसको बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस किसके थ्रू हो रही है, या तो आप लोग अपने लैपटॉप में देख रहे हो, अपने कंप्यूटर्स में देख रहे हो, अपने मोबाइल में देख रहे हो। सो दीज आर द मीन्स मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, किसके थ्रू आप देख रहे हो। तो ये कौन से हो गए, नंबर वन है आपका टेलीफोन। आप टेलीफोन में आप लोग फोन पे बात कर सकते हो, राइट। किसी का फोन आता है तो मोबाइल बजता है आप लोगों का, आप लोग बात करते हो, तो ये क्या है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, इसमें दूसरा आता है आपका टेलीफोन में ही है SMS। अब SMS का आप लोगों को मे बी यू डोंट नो, बट SMS का भी फुल फॉर्म है। SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसका फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। मतलब कि हम जो भी बात कहना चाहते हैं वो हम छोटे फॉर्म में उसको समझाते हैं, SMS कर देते हैं। सपोज दैट इफ आई वांट टू से समथिंग टू यू, राइट। तो अब आप लोग मेरे सामने तो हो नहीं, तो मैं सिर्फ एक क्या मैसेज भेजूंगी, अगर मैं बिजी हूँ, बिजी राइट नाउ, तो यू विल अंडरस्टैंड यस मैम इज बिजी राइट नाउ, शी विल कॉल अस लेटर और शी विल टॉक टू अस लेटर। या कभी आप लोग क्लास में आते हो, राइट, या कुछ भी ऐसा होता है तो आपके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, बिजी, राइट। तो ये क्या है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आपका, ठीक है, जो कि शॉर्ट मैसेज सर्विस जिसको हम बोलते हैं टेलीफोन के बोलते हैं। नाउ दूसरा है आपका कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, ये भी हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज दे आर द इलेक्ट्रॉनिक और यू कैन से दैट कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। जैसे कि आपकी ईमेल्स होती है, फेसबुक यूज़ करते हो, ट्विटर यूज़ करते हो, स्काइप यूज़ करते हो। सो दीज आर सम ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू आप एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हो, राइट। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग इन इंडिया एंड आई हैव टू सेंड मैसेज वन ऑफ माई फ्रेंड who is in maybe Canada, so how can I communicate with her? इंटरनेशनल कॉल भी तो लगती है ना, अगर मैं टेलीफोन करूँगी देन इंटरनेशनल कॉल लगेगा। सो सिंपल और यू कैन से easy
जो 1 सेकेंड में मैसेज आ सकता है, या तो हम मेल कर सकते हैं, या वी कैन यूज फेसबुक, व्हाट्सएप, राइट। सो दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम फेसबुक या व्हाट्सएप पर उनको मैसेज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, राइट। तो कंप्यूटर्स हमें एक इस तरीके से हेल्प करते हैं एक दूसरे की कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि हमें एक दूसरे से बात के रखा है पूरे वर्ल्ड में, राइट। सो these are some of the you can say means of communication. अब आता है हमारा मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब होता है ग्रुप, यानी कि when we talk to or when we communicate with a large number of people, ठीक है। इसका क्या होगा मास कम्युनिकेशन का? when we communicate with large number of people, अब क्या है ना, you will ask me, मैम हमें बहुत सारे लोगों से बात करने की क्या जरूरत है जब हम we all are sitting together? Why should we communicate with all the people present on this earth? It is important. Why it is important? Because न्यूज़ आती है, तो न्यूज़ एक पर्सन के लिए तो नहीं आती है ना। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे हूँ, इफ आई वांटेड टू सी न्यूज़ ऑफ होल ऑफ दिस अर्थ, कि अर्थ में क्या चल रहा है या दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है, तो मैं किसी जर्नलिस्ट को फोन करके तो नहीं बोलूँगी मुझे स्पेशली न्यूज़ भेजो, राइट। तो व्हाट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आई विल यूज मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, लाइक टीवी, then or I can read newspapers, या फिर मैं रेडियो सुन लूँगी, राइट। सो these are the things, or you can say these are the modes of mass communication, कि हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे मैसेज देना है, पीएम को मैसेज देना है पूरी कंट्री को, तो वो हर एक घर पे तो नहीं जाएगा, वो क्या करेंगे, वो हेल्प लेंगे किनके? टीवी, न्यूज़पेपर या रेडियो की, है ना, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की। तो ये क्या हो गया हमारा मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ग्रुप, कि मेरे को अपना मैसेज पहुंचाना है ग्रुप ऑफ पीपल को, बहुत नंबर लोगों को, राइट। अब जैसे मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रही हूँ, तो ये जो मैसेज है मेरी, ये जो ये क्लास है आप सब लोगों को दिखेगी, तो ये किससे दिखेगी? विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, यानी कि टीवी, एक तरीके से हम टीवी का यूज कर रहे हैं, राइट। न्यूज़पेपर का तो यूज नहीं कर रहे हैं, हम टीवी का यूज कर रहे हैं या मोबाइल फोन्स का यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया? मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हेन वी कम्युनिकेट with large number of people or large group of people, okay. So this is called mass means of communication. So my dear students, this was all about your communication, transportation and communication. I hope you will understand the chapter. If you have any query, please write in a comment box, or you can ask you can leave a message. For the time being, stay healthy, stay safe. Thank you and